Assalamu alaikum, everyone. Beta, we have done basic level questions up to question number 3, and now we are moving towards the intermediate level question. And the intermediate level question, we have 4 questions. That is question number 4, 5, 6, and 7. And you select any of the question for me to solve it here. And if you think you can do it by yourself, then we should move ahead towards to the advanced level. Zakaria, Samir, do you? Hello. Okay, question number 5. In question number 5, you need to put the values of x from -4 to 2. Okay, can you dictate me the question so I can write it? Zakaria, can you dictate me the question so I can write it, beta? एक मिनट Question number 5. Question number 5 now. Yeah, can you tell me the equation, please? Y equals to 5 minus 2x minus x square. Okay, now we need to put the values of from -4 to 2. Okay, so we should use this graph, we should use this table to help us. -4, -3, -2, oh sorry, -3, -2, -1, 0, 1, and 2. Beta, do you know anyone Usman Saif? In which class he is? Is he in commerce or is he in क्या नाम है science? He's okay. समीर, बेटा 4 कोई मसला नहीं है. इस क्लास के एंड में हमारे पास 10 मिनट होंगे. 10 मिनट बहुत है उस सवाल को समझाने के लिए. मैं तुम्हें समझा दूंगा लेकिन आज, ठीक है? क्यों बेटा, तुम्हारी मैथ्स की क्लास है ये? अच्छा, इस क्लास के जो एंड के 10 मिनट होंगे ना, उस वक्त आ जाना जल्दी से मेरे पास, ठीक है? ठीक है, ओके. So guys, we are going to put the values of x in equation y equals to 5 minus 2x plus x. Starting from the equation y equals to 5 minus 2x, beta minus x square plus x square. Okay guys, can you see the question now? Zakaria, Naufal, Yusuf. Okay. First of all, you need to put the values of x equals to 5 minus 2 multiply by -4 minus 4 का स्क्वायर, ठीक है? And the answer would be 5 minus 5 plus 8 minus 16 and 5 plus 8 equals to 13. 13 minus 16 equals to -3. So when the value of x equals to 4, when the value of x equals to -4, the value of y would be -3. Got it? Zakaria, Naufal, Yusuf, and Omar Sharafat, Esba. Now all of you need to put the value of x equals to -3. Start. चलो जल्दी जल्दी जल्दी.
एक काम करो ज़करिया, तुम x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट करवाओ। उमर शराफत x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 तो 5 के बराबर हो जाएगा। नौफिल x इक्वल्स टू -1, इसबा x इक्वल्स टू -2। सारे एक एक वैल्यूज निकालो जल्दी से। इट विल सेव आवर टाइम। क्या बारिश हो रही है तुम लोगों की तरफ? बेटा, इज इट ट्रेनिंग एट योर साइड? ओके, नौफिल, इसबा, यूसुफ, अभी तक एक वैल्यू नहीं निकली है तुम लोगों से। एक वैल्यू नहीं निकाली अभी तक तुम लोगों ने यार। तो व्हेन विल यू टेल मी? डेफिनेटली ना मेरा बच्चा। नहीं, +2। when you put the value of +1 or -1? कौन सी वैल्यू पुट करवाई है ज़करिया? +2, +2। ओके, लेट मी चेक। 5 माइनस इंटू 2 इंटू 2 +4, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, -3। ठीक है बेटा। चल, and all you have the values. So now moving towards the graph, how many quadrants should we make? हमें कितने quadrants बनाने चाहिए? 1 2 3 4। बेसिक्स ऑफ ग्राफ वाली इक्वेशन वीडियो देखी थी बेटा? 4 बनाएंगे। बेसिक्स ऑफ ग्राफ वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, डिड यू वॉच इट? मेरा बच्चा उसको देख लो, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज वी हैव पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, सो वी नीड टू मेक 4 quadrants बिकॉज वी हैव ऑल द वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। सो okay guys, can you see the graph? All of you can see the graph, my friend? Okay, so tell me the value when x equals to -4, what was the value of y? -3. Okay, Isba, you need to plot that point. X equals to -4, y equals to -3. You need to plot that point with the help of the annotation option. Jaldi. -4 -3 means the value of x equals to -4 and the value of y equals to -3. Isba, plot it. Isba, hurry up beta. When we put the value of x equals to -4, we got the value of y equals to -3. So we need to put the value of -4 and -3. x equals to -4, y equals to -3. हमें x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3 वाले पॉइंट को प्लॉट करना है। बताओ कहाँ प्लॉट होगा?
तुम्हारे पास एनोटेशन का ऑप्शन है बेटा? डेफिनेटली होगा। एनोटेशन का ऑप्शन उठा लो और उस जगह हाईलाइट कर दो जिस जगह पर पॉइंट प्लॉट होना चाहिए। सिर्फ एक डॉट लगाओ, इतना बड़ा थोड़ी, सिर्फ एक डॉट लगा दो। चलो, -4 -3 बेटा, -4 -3, एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, कौन सा क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। हाँ, इस जगह पे जो तुमने -4 -3 वुड बी दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है ज़करिया। -3, 2, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 2, -3 2, जल्दी से प्लॉट करो। -3, 2 मतलब x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 2। वेरी गुड, दिस वुड बी द पॉइंट। ठीक है नौफल, -2, 5, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5, -2, 5। नौफल जल्दी से बेटा। -2, 5 वुड बी हियर। ठीक है बेटा। ओके यूसुफ, -1, 6। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कौन कौन बच्चे मौजूद हैं? तलहा, 0,5, 0,5। Zero comma 5, x 0, y 5। वेरी गुड। उमर शराफत, 1,2। उमर शराफत 1,2, 1,2, x equals to 1, y equals to 2। Very good. And the final point was 2, -3. So 2, -3 would be at that point. ठीक है बेटा? Is there any confusion? Now we need to connect these points with the help of a curve using a pen. So this is the curve, and if I ask you to find the solution of the equation, then just point it out. Don't tell me, just point it out on the screen. Nofil, if I ask you to find the solution of the equation, then point out the solution of the equation on the graph. बेटा ये दोनों x ही के बराबर है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, because we are working on x axis. So the first solution is -3.5 and the other solution is 1.5. Did you get the point? Any one of you can draw the graph? 5 minus 2x minus, हाँ बेटा बोलो कौन सा? किस जगह? ना बेटा, हमें देखो, जब हम सोल्यूशन मालूम कर रहे होते हैं ना, तो सोल्यूशन मालूम करने का मतलब ये होता है कि वी नीड टू फाइंड द पॉइंट एट विच वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। ये कर्व जिस जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, दैट वुड बी द सोल्यूशन।
जो y को कट कर रहा है दैट इज y इंटरसेप्ट, वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। If I ask you to find the solution of the equation, you just need to check at which two points this curve cuts the x-axis. Simple. अगर आपसे पूछा जाए solution of equation मालूम कीजिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? All you need to check कि जनाब किस जगह पर ये कर्व x-axis को कट कर रहा है. Got it? बेटा जिस बच्चे ने मुझसे सवाल किया था वो कम से कम यस या नो में जवाब तो दे. अगर उसकी नहीं समझ में आया तो मैं समझ आ गया क्या? So this is the equation and this is the solution. Is there any confusion? Is there any confusion? Okay. Okay, now moving towards the question again. Now you need to decide from advanced level question, that is question number 8 or question number 9, which question should be done by yourself and which question should be done by man. तो मैंने कौन सा पार्ट करना और तुमने कौन सा पार्ट करना है, मतलब मैंने कौन सा पार्ट तुम्हें समझाना है, तुम ये बता दो. 8 और 9, choice is entirely yours. जल्दी जल्दी जल्दी, we do not have all day my friend. चलो ठीक है, just wait for a while. Okay guys, question number 9. You have the values of x and y. Okay guys, you have the values of x and y. X equals to 0, y equals to 200, x equals to 1, y equals to 201, x equals to 2, y equals to 109. Up at that particular time, you need to... एक मिनट बेटा मैं जरा... Okay Samir Ali, you can join me at 11:40. ठीक है बेटा? Okay guys, we have the values of x and y, but the values of y is so huge. So in order to know how can we draw it, you must watch the video basics of mapping and scaling. जब तुम मैपिंग एंड स्केलिंग को देख लोगे तो तुम्हें एटलीस्ट ये बात समझ में आ जाएगी कि हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किस तरीके से करना है. एंड स्टिल इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन आई विल लेट यू नो कि जनाब किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या तुम लोग वैल्यूज प्लॉट कर सकते हो या नहीं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मींस अ बॉक्स, अ कंप्लीट बॉक्स इक्वल्स टू 1 मीटर. मतलब अलोंग एक्स एक्सिस यू नीड टू टेक 0 to 6 वैल्यूज. मतलब एक्स एक्सिस पर आपने कितनी वैल्यूज लेनी है, 0 से लेकर 6 तक. एंड अलोंग वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर, मतलब दो बड़े डब्बे रिप्रेजेंट करेंगे 50 सेंटीमीटर को. ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस फॉर 0 to 250. इसका मतलब पहले दो डब्बे 50 के बराबर, देन द नेक्स्ट टू बॉक्सेस 100, देन द नेक्स्ट टू बॉक्सेस 150, देन द नेक्स्ट टू बॉक्सेस 200 एंड द नेक्स्ट टू बॉक्सेस वुड बी इक्वल्स टू 250. ये सबसे पहले वैल्यूज देख के बताओ हाउ मेनी क्वाड्रेंट शुड यू मेक इन दिस क्वेश्चन. बेटा 1, क्योंकि हमारे पास y की भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बनाना चाहिए. ठीक है बेटा, तुम्हारे पास x और y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सारी पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव भी हैं? जल्दी बताओ जल्दी. सारी पॉजिटिव. जब सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो दूसरा तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमने इस ग्राफ को सॉल्व कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट जब तुम इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, चलो मैं तुम्हें एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, तुम बस ये इक्वेशन मुझे डिक्टेट करा दो. इक्वेशन डिक्टेट करा दो बेटा. बेटा कैन एनीवन डिक्टेट मी द इक्वेशन? y इक्वल्स टू 200 प्लस 7x. नजर आ रहा है ऊपर? क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रहा, ये रहा. माइनस 6x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 200 प्लस 7x माइनस 6x स्क्वायर.
अब देखो दिस इज द ग्राफ, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़े यहाँ पर स्केलिंग की हुई है इसलिए हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ बन रहा है। अगर तुम इसके एक्सेस चेंज कर दो, एक्सेस चेंज करने का मतलब क्या है, देखो इधर अब समझ आया बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा। ग्राफ की कंडीशन समझ में आई कि ग्राफ बनेगा किस तरीके से। नौफल, उमर, इस्बा, यूसुफ, यहां तक बात समझ में आई। ग्राफ तो तुम लोग बना लोगे, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि फाइंड ओनली द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का आंसर क्या होगा ये बता दो। पहले तो मैं तुमसे बोलूंगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बता दो। चलो नौफिल, नौफल, नौफल, टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये लो, और हाँ, और -6.2, आर यू श्योर? आर यू श्योर -6 से पहले आ रहा है वो? -5.2, ठीक है। इसका मतलब तुमने मुझे दो सोल्यूशन बता दिए, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव। इफ आई आस्क यू टू फाइंड ओनली द पॉजिटिव सोल्यूशन, देन व्हाट वुड बी द आंसर? हाँ भैया, वेरी गुड। हाँ उमर शराफत बोलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो अगला पार्ट पूछा गया है वो यही पूछा गया, द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ 200 प्लस 7x माइनस 6x स्क्वायर। ये बात समझ आई बेटा? यहां तक कोई परेशानी? नौफिल, इस्बा, यूसुफ, तलहा, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं, उमर शराफत, यहां तक कोई मसला? अब आगे बढ़ते। The horizontal distance from the foot of the platform when the balloon is 50 centimeter above the ground. आपने मालूम करना है with the help of the graph the horizontal distance from the foot. अच्छा, हम लोगों ने x एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया था? हमने x एक्सिस पे मीटर्स ड्रॉ किए थे। सवाल क्या था? During an annual carnival, participants are each expected to throw a balloon filled with water from the top of a platform. कुछ लोग एक छत के ऊपर से बलून पानी से भरे हुए नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेटफॉर्म। पॉइंट्स किस बेस पर मिल रहा है कि जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उस प्लेटफॉर्म से, मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हम थ्रो फेंकते हैं, तो थ्रो जितनी दूर जाएगी उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा, उतना ही ज्यादा हमें पॉइंट्स मिलेंगे। Horizon threw a ball during the flight its height above the ground level y सेंटीमीटर। उसने किस हाइट पर भेजा? y सेंटीमीटर पर भेजा, मतलब y एक्सिस पर उसकी हाइट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब कि जब उसने बॉल फेंकी तो उसने बलून पानी का भरा हुआ फेंका तो वो कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरा। तो हमने बेसिकली इस वाले पार्ट में द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तुम में से क्रिकेट कौन खेलता है जल्दी से बताओ? सभी खेलते हो। जब थ्रो करते हो तो जितनी जितनी हाइट पर थ्रो होगी उतने ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। अगर तुम बिल्कुल ही सीधी फेंकते हो तो मुंह पर आके गिरेगी, लेकिन अगर तुम अपने हाथ को 45 के एंगल पर रखोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसने यही कहा है कि जनाब अगर होइक्सियन का बलून 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड था, 50 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर था, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना किया होगा। इसका तरीका जरा सीख लो। पहले तो तुम मुझे ग्राफ में ये देखकर बताओ कि 50 सेंटीमीटर की हाइट किस जगह मौजूद है। पहले तो मुझे ये बता दो सर, हमने हाइट को y एक्सिस पे लिया हुआ, 50 सेंटीमीटर की हाइट किस जगह मौजूद है?
y एक्सिस पर 50 किस जगह मौजूद है? y एक्सिस पर 50 किस जगह मौजूद है? हाईलाइट करो विद द हेल्प ऑफ द एनोटेशन ऑप्शन। एग्जैक्टली इस जगह पर हमारे पास 50 मौजूद है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है? बताओ मेरा बच्चा, क्या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या हाइट कभी अगर मैं जमीन पर खड़ा हुआ हूं और वो जमीन पर ही आकर गिर गया तो क्या हाइट कभी नेगेटिव होगी? क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हुआ उसी जगह वो आकर गिर गई। अब जरा गौर से देखो, जिस जगह ये 50 मौजूद है उस जगह पर ये एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर मैं इस 50 से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन कर्व को कितनी जगह पर कट कर रही है? नौफिल कितनी जगह पर कट कर रही है? जल्दी से बताओ। अरे यार तुम लोग इतना स्लो रिस्पॉन्ड क्यों करते हो? दो जगह पर कट कर रही है। अब मुझे इतना बता दो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे लिए कैंसिल हो गई, ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। हमें पॉजिटिव वैल्यू चेक करनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है? इस जगह पर ये कट कर रहे हैं 5.9, 1.9, 4.9। बेवकूफ आदमी ये। अरे नहीं मेरा बच्चा, यहां से लाइन ड्रॉ करो। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? इस सवाल को कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टाइम खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा फेवर दे दो बेटा। तुम लोग बेसिक्स ऑफ स्केलिंग वाली वीडियो देखकर आ जाओ, वरना मुझे वो तुम लोगों को अलग से समझानी पड़ेगी। एंड आई बिलीव कि वो टॉपिक तुम्हें पहले से कवर करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ हुआ तो वो मैं समझा दूंगा। लेकिन फेवर ये दे दो कि उसको एक बार देख कर आना कल, ठीक है? हाँ बेटा। बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं चाहे 2 कदम आगे जाऊं या चाहे 2 कदम पीछे जाऊं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तुम अगर 2 कदम आगे जाओ या 2 कदम पीछे जाओ क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा? अगर मैं 2 कदम उल्टा चलना शुरू कर दूंगा तो मेरी उम्र 2 कदम कम हो जाएगी क्या? तो डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, लेंथ, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है? इट कैन बी जीरो बट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है? कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेटा वीडियो जरूर देख लेना प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? चलिए बेटा, खुदा हाफिज।